Friends, last time we started with the application of Bernoulli's equation. Bernoulli's equation, if you remember, then it is P plus half rho V square plus rho Gy is constant. That's the Bernoulli's equation. And along with that, we have to remember equation of continuity given as AV is constant. Now, next we go on for the in the applications. We took two of them before. First is we took regarding aerofoil, that is a landing and takeoff of aeroplane, and second we took the swing bowling. Okay, ये दो हमने लिए थे theoretical applications से. अब चलते हैं practical application पे. Venturimeter. Now venturimeter is a device which is used to measure the speed of flow at a point in the pipeline. मान लो कोई पाइपलाइन है, पानी की हो या फिर कोई केमिकल इंडस्ट्री में केमिकल की पाइपलाइन है, तो इन दैट टू नो द फ्लो ऑफ द स्पीड वेंचुरीमीटर इज यूज्ड. इसका मेन पर्पस है टू नो स्पीड ऑफ फ्लो, स्पीड ऑफ फ्लो पता लगाने के लिए. अच्छा, इसका अरेंजमेंट कैसा है? तो देयर इज अ ब्रॉड ट्यूब. ये ब्रॉड ट्यूब है वेंचुरीमीटर के कंस्ट्रक्शन में. फिर ये आगे जाके थोड़ी नैरो हो जाती है, फिर वापस ब्रॉडन हो जाती है. सो दिस इज द सिचुएशन. नाउ दिस नैरो पार्ट इज कॉल्ड थ्रोट. इट्स कॉल्ड थ्रोट. Okay, narrow portion is called throat. Then further here a U-shaped tube is connected. A U-shaped tube is connected which is called manometer. A U-shaped tube called manometer is connected here. This tube is called manometer. Okay. In this tube, U-shaped tube, there is a liquid filled. In this manometer tube, there is a liquid filled. Usually mercury होता है, तो लिक्विड का लेवल सेम रहता है. यहाँ पे हम लोग थोड़ा डार्कन कर देते हैं इसको. We'll show it by dark line. This manometer is filled with mercury. Okay, ये मैनोमीटर फिल्ड है. बाकी का पोर्शन कैसे भरा होता है? तो यहाँ से जो लिक्विड फ्लो है, जिसका फ्लो हम ढूंढ रहे हैं, ये सेंट्रल स्ट्रीमलाइन होगा इस लिक्विड की. These are the other streamlines. बराबर है. तो ये ट्यूब बाकी के इस लिक्विड से भरी होती है. The liquid which is flowing in the venturimeter tube. This is a venturi tube, throat. Then there is a manometer. This liquid has a density rho, and the liquid inside the manometer has a density rho dash. Liquid inside the manometer has a density rho dash. Now let us suppose ये पॉइंट हो गया एक और दूसरा ये पॉइंट हो गया. ब्रॉडर पोर्शन, नैरो पोर्शन, वेंचर ट्यूब, थ्रोट. वेंचर ट्यूब में प्रेशर सपोज P1 है, एरिया क्रॉस सेक्शन A1 है, स्पीड वहां पे V1 है फ्लो की. यहाँ पे प्रेशर P2, एरिया A2, वेलोसिटी V2 at the throat. Okay, now we know that broader cross section means A is more so V is less. लो स्पीड होगी तो प्रेशर हाई होगा. यानी इस पॉइंट A पे, सॉरी पॉइंट 1 पे प्रेशर ज्यादा होगा, पॉइंट 2 पे प्रेशर कंपैरेटिवली कम होगा. यानी P1 will be bigger than P2. As P1 is more, the level will drop here. ज्यादा प्रेशर इसलिए नीचे आएगा एंड ये लेवल उतना ऊंचा जाएगा. ओके, तो दिस लेवल विल गो अप एंड दोनों के बीच में लेवल डिफरेंस ऑफ H is created. A level height difference of H is created in both the tubes. दोनों ट्यूब के लेवल के बीच में हाइट डिफरेंस हो गया H. See, remember well, at point 1 cross section is more, so speed will be less. Speed less, so pressure will be more. Cross section more, so speed less. Speed less, so pressure will be high. ओके, तो यहाँ पे हाई प्रेशर, इसलिए यहाँ ज्यादा प्रेशर है, इसलिए यहाँ प्रेशर ज्यादा लगा. ये लेवल नीचे गया मैनोमीटर के लिक्विड का, ये लेवल ऊपर गया. दिस लिक्विड इज डेंसिटी रो डैश एंड दिस लिक्विड इज डेंसिटी रो. ओके, नाउ शुरू करते हैं. वी वांट द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट पॉइंट 1 इन द वेंचर ट्यूब. वी वांट वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन वेंचर ट्यूब दैट पॉइंट 1. ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे? चलो शुरू करते हैं. यहाँ पे डेरिवेशन, एक डेरिवेशन लेना. यहाँ पे शुरू करते हैं. अकॉर्डिंग टू Bernoulli's equation,
p plus half rho v square plus rho g y is constant. Okay, writing it for left and right side. So we can write p1 plus half rho v1 square plus rho g y1 is equal to p2 plus half rho v2 square plus rho g y2. Now here what will happen? सेंट्रल स्ट्रीमलाइन को हम लोग कंसीडर करते हैं, तो सेंट्रल स्ट्रीमलाइन दोनों जगह पे सेम हाइट पे, इक्वल हाइट पे. सो एज सेंट्रल स्ट्रीमलाइन एट इक्वल हाइट्स y1 इक्वल टू y2, तो ये दोनों लास्ट टर्म तो कैंसिल हो गए. तो व्हाट यू गेट इज p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर. ये रो जी y1 रो जी y तो कैंसिल हो गया, बराबर है. फर्दर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, फ्रॉम दिस वी कैन से दैट देयरफॉर p1 माइनस p2 विल बी इक्वल टू हाफ रो कॉमन, ये उधर जाएगा ना, हाफ रो कॉमन v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. ओके, हाफ रो कॉमन v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. फिर ऑल्सो in manometer as points A and B at equal heights. कहाँ है ये पॉइंट A and B? तो ये पॉइंट A हो गया यहाँ पे, एंड यहाँ पे उसी हाइट पे, सेम हाइट पे ऐसे पॉइंट B. बोथ आर एट इक्वल हाइट्स. Therefore pressure at A is equal to pressure at B. ना ए पे प्रेशर कितना, यहाँ पे P1 है प्लस प्रेशर ड्यू टू दिस मच हाइट, बराबर है. दैट इज P1 प्लस, हम लोग क्या करते हैं सेंट्रल स्ट्रीम लाइन से इसको H डैश बोल देते हैं, बराबर. यहाँ पे H डैश बोल दिया, तो इतनी हाइट का प्रेशर कितना होगा, H डैश प्लस H इंटू रो जी, बराबर है. रो जी H इज द प्रेशर का फॉर्मूला. तो यहाँ पे प्रेशर P1 प्लस प्रेशर ड्यू टू दिस मच हाइट H डैश प्लस H इंटू रो जी. डेंसिटी ऑफ लिक्विड हियर इज रो. एंड फिर राइट साइड पे देखे तो बी पे प्रेशर कितना, एक तो P2 प्रेशर एट द थ्रोट प्लस प्रेशर ड्यू टू दिस लिक्विड हैविंग डेंसिटी रो, कितना हाइट है H डैश, सो प्लस H डैश रो जी. एंड फिर H हाइट किसका है, लिक्विड इन द मैनोमीटर जिसका डेंसिटी रो डैश है, तो प्लस H रो डैश जी. ओके, तो यहाँ पे तीन पार्ट हो गए, एक तो P2, दूसरा प्रेशर ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग इन द वेंचर ट्यूब, एंड तीसरा लिक्विड इन द मैनोमीटर, ये तीसरा. तो तीनों का प्रेशर, इसका हाइट H डैश है H डैश रो जी, एंड इसका H है H रो डैश जी. ओके, ओपनिंग द ब्रैकेट ऑन द लेफ्ट साइड, तो P1 प्लस H डैश रो जी प्लस H रो जी इज इक्वल टू P2 प्लस H डैश रो जी प्लस H रो डैश जी. कुछ कैंसिल हुआ तो H डैश रो जी गया, तो व्हाट यू गेट इज P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो GH कॉमन रो डैश माइनस रो हो गया. लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2. 1 में रखने में काम आएगा. ओके, तो ना यहाँ पे जो हमने स्टेप्स लिए, कितने स्टेप्स, यू कैन स्किप दिस स्टेप्स. यहां से सीधा ये लिख सकते हैं इन मैनोमीटर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप लिख सकते हो, इट इज अलाउड, बराबर है. ये मैंने इसलिए दिया डिटेल प्रूफ, इस स्टेप का, इस फॉर्मूला का डिटेल प्रूफ क्यों दिया, ताकि आपको पता लगे कैसे आया. दूसरा न्यूमेरिकल्स में एप्लीकेशन है ऐसे हमारे पास, तो वहां पे भी हमको काम है. ओके, यू कैन डायरेक्टली स्किप फ्रॉम 1 to 2, यू नीड नॉट राइट दिस, बट इफ यू राइट दैट इट्स अ गुड इंप्रेशन. नहीं लिखोगे तो कोई वादा नहीं है. ये फॉर्मूला कहाँ से है, अगर मैं लिख दूं बट इन मैनोमीटर, ये फॉर्मूला डायरेक्टली लिख दूं तो विल बी वंडरिंग हाउ दिस फॉर्मूला केम. तो आई हैव गिवन यू द स्टेप्स ऑफ दिस फॉर्मूला. ओके, नाउ इक्वेटिंग 1 and 2, what we get is half rho v2 square minus v1 square is equal to gh rho dash minus rho. Okay, let's say equation number 3. हमारा टारगेट v1 फाइंड करना है, तो v2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा. यहाँ पे v1 फाइंड करने के लिए v2 एलिमिनेट करना पड़ेगा. कैसे एलिमिनेट करेंगे तो देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, what we say that a1 v1 equal to a2 v2, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी पे से a1 v1 equal to a2 v2,
ए यानी बड़ा, A1 यानी बड़ा क्रॉस सेक्शन, कैपिटल ए बोल देते हैं। V1 इज इक्वल टू छोटा एरिया थ्रोट का, छोटा ए लिख दिया V2। We want to find V1, so we eliminate V2. Alright, so therefore we say that V2 will be equal to, which implies V2 will be equal to A upon A into V1. Let's say equation number 3, 3 का आ गया 4 नंबर। ओके, अब 4 को पुट कर दें थर्ड में, तो V1 एलिमेंट, V2 एलिमेंट हो जाएगा। यूजिंग 4 in 3, what we get is हाफ रो V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर, यानी आ गया, so that will be A square by A square into V1 square minus V1 square is equal to GH into रो डैश माइनस रो। ओके, इसमें तो V1 स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो क्या बचा, रो बाई 2 इंटू A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इंटू GH रो डैश माइनस रो। ये V1 स्क्वायर निकल गया, 1 बचा, तो ये सिंप्लीफाई कर दिया उसको। नाउ V1 तो V1 स्क्वायर को सब्जेक्ट का फॉर्मूला करते हैं सारा उस तरफ, तो 2GH रो डैश माइनस रो अपॉन रो इंटू A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, एंड फिर नीचे का A स्क्वायर कहाँ गया, ऊपर। ओके, V1 तो V1 को यानी रूट कर लेते हैं यहाँ पे, तो फिर आ जाएगा रूट 2GH इंटू रो डैश माइनस रो इंटू A स्क्वायर अपॉन रो इंटू A square minus A square, where capital A is the area of the bigger venture tube and small A is the area of the throat, area of cross section of the throat. Okay, तो ये हो गया formula for speed of flow at venture tube, broader portion. If you want for throat, तो फिर क्या करोगे, अगर throat पे चाहिए speed तो यहाँ पे V2 चाहिए, तो V1 को एलिमिनेट करेंगे, यानी यहाँ पे V1 को सब्जेक्ट का फॉर्मूला करके पुट कर दो, सेम आएगा। ओके, then you will get the speed of flow at throat. Okay, further एक और चीज, we had seen that volume flux is equal to AV, बराबर है, तो V1 ढूंढ है, तो बड़ा A into V1 लेते हैं, बड़े का क्रॉस सेक्शन टू V1 and that will be equal to वे वैल्यू फॉर्मूला डाल दो, that's all, ये हो जाएगा वॉल्यूम फ्लक्स at that point. ओके, तो ये हो गया पहला एप्लीकेशन वेंचुरीमीटर का। अब यहाँ पे फॉर्मूला में देखो तो G तो कांस्टेंट है, रो डैश एंड रो भी फिक्स है, डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड बोथ आर फिक्स्ड एंड वी नो अबाउट इट, नोन वैल्यू है। रो तो नोन वैल्यू है, कैपिटल एंड स्मॉल ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द थ्रोट एंड द ब्रॉडर पोर्शन इज आल्सो नोन, क्योंकि वेंचुरी ट्यूब तो हम लोग यूज कर रहे हैं हमारा, तो उसमें सब क्रॉस सेक्शन की वैल्यूज भी है, तो बचा क्या, खाली H, बराबर है। तो इस वेंचुरी ट्यूब को कोई फ्लो पाइप में लगा दो एंड फिर चेक करो हाइट डिफरेंस कितना आता है, उसके ऊपर यू कैन से स्पीड कितना ज्यादा है, तो speed is now obtained in terms of height difference here in the tube. So this height difference gives the value of the speed at that place. बराबर है, यानी इसको कहाँ यूज कैसे लगाते हैं, तो अगर एप्लीकेशन देखे तो somewhat like this, we'll need space for that. Suppose there is a tube, there is a pipe in which liquid is flowing. We want to know the velocity of flow here in the liquid. ये in this pipe, velocity of flow in this pipe, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा गैप रखा जाता है जो यहाँ कनेक्ट कर दिया एंड फिर इसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। ओके, तो फ्लो यहाँ से निकल रहा है, यानी ये फ्लो यहाँ से पास होकर निकल रहा है, तो यहाँ कितना स्पीड है उसका पता लग जाता है। That's how it is connected. Nowadays there are digital meters to measure the speed in the pipe, so nowadays venturimeter is not used, but venturimeter can give directly from the height difference how much is the speed of flow here. Okay, so that's the application of venturimeter. ये application theoretically तो no doubt it's good one, but numericals में इसका application, numericals में यही steps करते हैं, बर्नौली इक्वेशन यूज करने का दोनों साइड अप्लाई करना है, फिर एरिया इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी यूज करने का दोनों साइड अप्लाई करना है एंड उसी को फिर सिंप्लीफाई करना है। Here it is the formula, therefore it looks a little bit complicated, but when it comes to the numbers in the numericals, it becomes very easy to solve the sums. Okay, so these are sometimes what you can say cash marks लेने के लिए, you can get marks perfectly all right if you're using this formula. Okay, so go through this. If you have any doubt or difficulty, please let me know.
तो नेक्स्ट एप्लीकेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला ऑब्टेन कर रहे हैं प्रेशर एट डेप्थ का। तो सपोज एक वेसल है फिल्ड विद वाटर और सम लिक्विड, ये पॉइंट ए हो गया सरफेस का एंड ये पॉइंट हो गया बी ऑफ द बॉटम। अब ये बॉटम पे बी पे कितना प्रेशर आएगा वो फाइंड करना है ड्यू टू दिस फ्लूइड, बराबर। तो उसके लिए अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, P plus half rho v square plus rho g y is constant. Whenever you apply Bernoulli's equation, पहले इक्वेशन लिखें फिर उसका एप्लीकेशन एट पॉइंट ए, तो अपने वन बोल देते हैं उसको P1 प्लस और लेट्स से PA, और लेट्स से P1 ओनली, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1 रो G Y1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G Y2. Okay, now here the fluid is steady fluid, so V1 equal to V2 equal to 0, तो वो टर्म तो गया। further we have pressure P1 equal to PA, atmospheric pressure exposed to atmosphere is तो atmospheric pressure P हो गया। फिर प्रेशर टू विल कॉल इट प्रेशर एट पॉइंट बी, जैसे प्रेशर P ओनली यहाँ पे। एंड फर्दर एक और चीज वाइट, ये Y1 हो गया, ये Y2 हो गया हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, तो Y1 माइनस Y2 इज इक्वल टू H। ग्राउंड से, जैसे ग्राउंड है ये Y2 है एंड ये Y1, ओके, तो Y2 माइनस Y1 हो गया। नाउ फर्दर अप्लाई करते हैं सारी वैल्यूज है, तो PA प्लस ये तो 0 हो गया, रो जी Y1 माइनस Y2 उसको वहां से ले आना है इज इक्वल टू P, ओके। तो प्रेशर बी P इज इक्वल टू PA प्लस रो जी H लग गया। तो ये हो गया प्रेशर एट पॉइंट बी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ड्यू टू प्रेशर ड्यू टू हाइट। ये हमने आगे स्टैटिक फ्लूइड में देखा था, फ्लूइड स्टैटिक्स में देखा था, यही फॉर्मूला, ये बर्नौली इक्वेशन का ऑब्टेन किया। दिस P इज कॉल्ड टोटल प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर एट पॉइंट बी, absolute pressure at point B. PA is the atmospheric pressure and rho G is pressure due to this height of liquid column. High pressure due to height of liquid column is rho GH, जिसको हम लोग गेज प्रेशर भी बोलते हैं, इट्स कॉल्ड गेज प्रेशर आल्सो, ओके। तो ये हो गया रिगार्डिंग प्रेशर एट डेप्थ, जस्ट सिंपली एप्लीकेशन और कुछ नहीं है। फिर चलते हैं एक और, विल ऑब्टेन टॉर्सलिस लॉ यूजिंग दिस बर्नौलीज इक्वेशन। So next we see the application of Torseli's law and obtaining Torseli's law using Bernoulli's equation. Now इस केस में कैसा है, सपोज एक वेसल है filled with water or some liquid having density rho, बराबर है, यहाँ तक फिल अप किया हुआ है। अब फर्दर यहाँ पे एक छोटा सा होल है, here is small hole. Now from this hole water will be coming out. Let's say ये छोटा सा होल है, यहाँ से liquid comes out, तो कितनी स्पीड से बाहर आएगा, उस स्पीड को बोलते हैं फ्लक्स स्पीड। वी वांट टू ऑब्टेन दैट फॉर्मूला। अब ये होल का डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर इज h, सरफेस से डेप्थ कितना है ये होल का h, तो ये फॉर्मूला हम लोग h के टर्म्स में ऑब्टेन करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन क्या आएगा, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो G Y इज कॉन्स्टेंट। राइटिंग इट फॉर पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2। पोजीशन 1 बोलते हैं सरफेस को एंड पोजीशन 2 बोलते हैं ओपनिंग को। तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G Y1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G Y2, ओके, ये हो गया। नाउ हियर P1 इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P1 is at यहाँ पे atmospheric pressure, even the liquid release here it also comes out in atmospheric pressure, atmosphere, तो P1 equal to P2 equal to PA हो गया, तो दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों तो गए। So now what happens is as well secondly ग्राउंड लेवल से होल का हाइट लेट्स से y2, सरफेस का हाइट लेट्स से y1, तो दोनों के बीच का डिफरेंस h हो गया ना, ये h। So here y2 is equal y1 minus y2 is equal to h। ना इस इक्वेशन में हमें स्पीड यहाँ पे चाहिए हाफ रो V2 स्क्वायर
इज इक्वल टू हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी y1 माइनस y2। क्या क्या हमने इसको उधर भेज दिया, ये एज इट इज। ओके, नाउ फर्दर v2 फाइंड करना हमको, तो मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय 2 बाय रो, 2 बाय रो होने देगा तो गया हाफ रो गया, यहाँ पे आ जाएगा हाफ रो गया तो v1 स्क्वायर प्लस रो गया 2 आ गया तो 2g एंड y2 माइनस y1 इज h। ओके, नाउ अब एक और आर्गुमेंट ध्यान से समझना, एज क्रॉस सेक्शन एरिया A1 इज वेरी मच बिगर एज कंपेयर टू A2। ये छोटा सा होल है, इट्स अ वेरी स्मॉल होल, सच एस वेरी स्मॉल होल इज कॉल्ड ओरिफाइस। इसको ओरिफाई बोलते हैं, मीन्स अ वेरी स्मॉल होल, माइन्यूट होल। अब A1 is very much bigger than A2, therefore just a moment, according to law of function, sorry, according to equation of continuity, according to equation of continuity, A1 V1 equal to A2 V2. Now as A1 is very much bigger than A2, therefore V1 will be very much smaller than V2 according to equation of continuity. As A1 is very much bigger than A2, so therefore V1 will be very much smaller than V2. Therefore, neglecting V1 in comparison to V2, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, तो इन इक्वेशन 1, let's see equation 1. So what do we get is, therefore V2 square will be equal to 2gh, therefore V2 equal to root 2 gh. ये हो गया स्पीड ऑफ द फ्लूइड कमिंग आउट फ्रॉम द स्मॉल होल। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द हाइट डिफरेंस, जितना हाइट डिफरेंस ज्यादा उतना स्पीड ज्यादा मिलेगा, जितना हाइट डिफरेंस कम उतना स्पीड कम मिलेगा। एंड वी नो दिस वेरी वेल। हमारे घर पे पानी में नल में पानी आ रहा है, बराबर है। अब हमारा घर अगर फर्स्ट फ्लोर पे, सॉरी जस्ट सी द सिचुएशन, हमारा अपार्टमेंट 14 स्टोरीज का है एंड वाटर टैंक उसके ऊपर है, छत पे 14 के ऊपर प्लस। तो आप अगर 13th फ्लोर पे रहते हैं, उसके बदले 3rd फ्लोर पे रहते हैं, हाइट डिफरेंस कहां पे ज्यादा होगा, 3rd फ्लोर के लिए, तो फिर यू हैव मोर स्पीड ऑफ वाटर कमिंग आउट इन 3rd फ्लोर रेदर देन 13th फ्लोर। 13 के कंपेयर में 3rd फ्लोर पे ज्यादा आएगा, क्यों, क्योंकि 3rd फ्लोर इज लोअर एंड 13 इज हायर। टैंक के नजदीक में डेप्थ कम होगा तो अब स्पीड कम होगा फॉल फ्लूइड का, यहाँ पे स्पीड ज्यादा होगा। घरों में, हाउसेस में जितनी ऊंची टैंक की लगाई होती है उतना ही ज्यादा फोर्स से पानी आता है नीचे, एंड दैट इज व्हाट इज contributes to the speed. Okay, तो ये हो गया। and this formula is called Torricelli's law. This formula is called Torricelli's law. Okay, having a wide application in our home. Clear? तो ये हो गया application of 5 Torricelli's law. Let's go through this. Friends, thus this completes the applications of Bernoulli's equations, and that it is also the end of second part of the chapter, that is fluid mechanics. तो fluid statics हो गया, fluid mechanics हो गया। Next we'll go for viscosity.